Hi everyone. So in this video, we will be talking about a one short video for coding questions. Okay. If you want to take an idea which type of coding questions do TCS ask, so in this video, we will be solving the actual TCS NQT questions. Okay. Actual TCS NQT questions, which they asked in 2025, also which they asked in the previous year. So it's a compilation video in which we will be solving with the exact language and exact questions which TCS do asked in their TCS NQT exam. But before going ahead with the questions, I just want to tell you guys, we are doing one thing, which is we are conducting the live mock test. Okay, so TCS exam is divided into total two parts. One is foundation test and one is advanced test. Okay, so see, suppose you are performing good in the foundation section, but how will you know that other students are not performing good in that section? So basically in the live test, you can see your rank, the other students scorecard as well. Also, what is your position among other students? Okay, and this kind of evaluation will help you a lot to get to know that how should actually prepare in the exam. Also the time analysis, because the whole mock test are with timers, so with timer only you will be seeing like what is your actual position. Second thing, how to manage your time, and in English, quant and reasoning, in which section you are weak. Okay, also for coding section we have provided the previous year question sheets. Okay, previous year question sheet you will be getting for TCS. Okay, with previous year questions and solutions. Okay, so this we already provided in the mock test as well. Also you will be getting a lot of questions from other companies, so you can practice. So what you need to do is I'll just explain you. So basically I will be just giving you the link in the description, so just open the link. After opening the link, you will be getting this one, which is TCS NQT mock test. The price is only 199 rupees. It is valid for the on campus as well as for off campus. The main part is now here you will be getting the full length mock test here, but apart from this, this section is very important in which we are conducting the live mock test, right? So full, you can see here TCS advanced full test, TCS foundation full test, TCS foundation practice test. In this kind of test you can attempt the test, okay, and see your position among other students, at which position you are standing. Okay, so this kind of thing will definitely help you out. Okay, also daily practice test, we have a lot of daily practice tests for your practice. Full length tests are also available, and practice sets are available. Previous year cheat sheet is available for coding questions and everything. There are a lot of material. Also, please join this WhatsApp group if you are purchasing the course, because on this group only you will be getting all the instruction like how you need to prepare. Okay, so link will be in the description. Let's start with our coding questions. तो TCS NQT 26 अप्रैल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया TCS NQT के। आज 26 का जो एग्जाम था उसमें ये वाला कोडिंग क्वेश्चन सभी लोगों से पूछा गया, और मैंने बताया भी था कि हैश मैप से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये हैश मैप का ही क्वेश्चन था, दैट इज फाइंड सब एरे विथ टारगेट सम। ये क्वेश्चन था, सब एरे विथ टारगेट सम। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और मैंने बोला भी था कि हैश मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जरूर क्वेश्चंस आते हैं, और आप देख सकते हो सामने क्वेश्चन आ चुका है हैश मैप से। ठीक है, सो इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या था? इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि सपोज ये एरे दिया है, ठीक है, ये एरे दिया है और एक टारगेट सम दिया है सपोज के, दैट इज 25। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सब एरे ऐसा है जिसका टारगेट सम ये बन रहा है, और आपको इंडेक्सेस प्रिंटेड करने हैं। जैसे कि अगर आप इस एरे में देखोगे तो 30 -5, ये जो दो पॉइंट दिए हैं, तो अगर आप 30 और -5 को सम करोगे तो ये आता है 25। सो अपन को क्या प्रिंट कराना है? ये वाला इंडेक्स प्रिंट कराना है कि कौन कौन से इंडेक्स में ये वाला सम बन रहा है। तो आप जैसे देख सकते हो कि इंडेक्स नंबर 2 एंड इंडेक्स नंबर 3, इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारा टारगेट सम बना रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक एरे दिया होगा, उसका कौन सा सब एरे है जो टारगेट सम बना रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको हैश मैप्स आते हैं तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप कर सकते हो। और इसको जरा समझते हैं क्या करना है आपको कैसे। ठीक है, तो अगर आपको प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं प्रीफिक्स सम होता क्या है। तो प्रीफिक्स सम का मतलब होता है कि अपन
स्टार्टिंग से लेकर एक प्रीफिक्स लेंगे और स्टार्टिंग से वो अपन सम कराते चले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अप्रोच एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं। सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 10, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि 10 में मैंने कुछ जोड़ा जिससे ये 30 बन गया, ठीक है। सो मैंने 10 में ऐसा क्या जोड़ा होगा जो ये 30 बन गया होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? 10 में मैंने ऐसा क्या जोड़ा होगा जिससे 30 बन गया होगा? तो मैं कहूंगा 30 में से 10 को माइनस कर दो, तो जो भी आता है दैट इज 20, ठीक है, दैट इज 20। वो मैंने 10 में जोड़ा होगा जिससे ये 30 बन गया होगा। बस इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करने वाले हैं कि क्या जोड़ा जो सम बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, इसका प्रीफिक्स सम करेंगे। अब प्रीफिक्स सम को देखते हैं वो क्या होता है। मतलब मैं सम को प्रीफिक्स करूंगा और मैं यहां से स्टार्ट से सम करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से जो भी है ना, यहां से मैं सम करना स्टार्ट करूंगा एंड तक, और मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आया -10, तो -10 का -10 ही रहेगा क्योंकि अभी एक ही एलिमेंट है। तो ये मैंने स्टोर करा लिया, ठीक है। -10 और 20 कितने होते हैं? -10 और 20 होते हैं 10, ठीक है। अब 10 और 30 कितने होते हैं? क्योंकि मतलब जो भी मेरा सम बनता चला जा रहा है ना, उसमें मैं आगे वाला एलिमेंट ऐड करता चला जा रहा हूं। 10 और 30 कितने होते हैं? 40, ठीक है। अब मेरे पास कितना आया? 40 हो गया, यहां तक का सम, यहां तक का सम हो गया ना। और उसके बाद -5 किया तो कितना आया? 35, ठीक है। अब मेरा जो जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स तक का सम यहां पर है -10, फर्स्ट इंडेक्स तक का सम है 10, सेकंड इंडेक्स तक का सम है 40, और थर्ड इंडेक्स तक का सम है 30, ठीक है। जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया था कि सपोज मेरे को 10 को 30 बनाना है। 10 30 कब बनेगा? जब मैं 10 में कुछ अमाउंट जोड़ूंगा। सो मैं कैसे निकालूंगा वो अमाउंट? 30 माइनस 10 करके, दैट इज 20, ठीक है। सो ये मैं ऑलरेडी स्टोर मान लो करा चुका हूं। जैसे मैंने आपको बताया के था हमारा 25, हमें सब एरे निकालना है 25 का। सो मैं 25 कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा कि देखो, जैसे सपोज 10 है, 10 से मान लो 35 बन गया, तो मैं ये बोलूंगा कि ना कि 10 में मैंने 25 जोड़ा होगा तभी तो 35 बना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कैसे पता लगाऊंगा? मैं 35 में से 25 को माइनस करूंगा और मैं चेक करूंगा कि अगर ये मैंने कैलकुलेशन करी और ऑलरेडी मेरे पास वो वाली संख्या है, दैट मींस मेरे पास 10 है, तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दोबारा मेरी बात को सुनना, यही इंपॉर्टेंट टर्म है। मेरे को सपोज 10 को 35 बनाना है, जैसे यहां पर लिखा है 10 और ये लिखा है 35। 10 से 35 कब बना होगा? ये जो 10 है इससे 35 कब बना होगा? 10 से 35 तभी तो बना होगा जब इसके बीच में 25 आया होगा, वरना कैसे बनेगा? अगर 10 से 35 हमारा बना, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बीच में 25 आया है। और बीच क्या है? बीच मतलब है ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स, ठीक है। ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स, और आप सामने देख सकते हो 30 -5 कितना होता है? 25। सिंपल। हमने क्या किया? हमने लगातार सम किया, प्रीफिक्स सम किया। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि जैसे यहां पर आप देख सकते हो 10 से 35 बन गया। कब बना होगा? जब उसके बीच में 25 आया होगा, जो कि हमारा के की वैल्यू है। बस उसके बीच के इंडेक्स को हम प्रिंट करा देंगे। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। और अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स सम कर लिया। प्रीफिक्स सम में जैसा कि आप देख सकते हो, अब इसको जरा टेक्निकल शब्दों में समझ लेते हैं कोड में कैसे होगा। तो देखो, अपन की के की वैल्यू है 15, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करूंगा। सबसे पहले जो भी हमारा करंट सम चल रहा है -10, ठीक है, उसमें से हमारे टारगेट सम को माइनस करूंगा, ठीक है। तो -10 -25 कितना आया? -35। क्या इससे पहले कभी भी -35 आया है? तो नहीं आया है। अगला स्टेप हमारे सामने क्या है? 10। 10 मैंने में से माइनस करूंगा अपने सम को। सो क्या आया? -15। क्या इस एरे में कहीं भी -15 आया है? नहीं आया है। माइनस करूंगा अब मैं 40 में से 25 को। क्या आया? 15। क्या कहीं भी इससे पहले 15 आया है? नहीं आया है। अब हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है, दैट इज 35। इसमें से माइनस करूंगा 25 को। क्या आया? 10। क्या इससे पहले कहीं भी 10 आया है? तो यस, 10 आया है, यहां पे आया है 10, ठीक है। सो देखो, 35 में से 25 माइनस किया, 10 10 आया है। इसका मतलब जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसके बाद वाले जो इंडेक्स हैं वो हमारा टारगेट सम मतलब के बनाते हैं, 25 बनाते हैं। बस इसी को अब हम कोड में लिखेंगे।
अब इसका जरा कोडिंग में सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक सबसे पहले यहाँ पर मैप क्रिएट किया है। ठीक है, मैप क्रिएट किया है। ये मैप क्या स्टोर करेगा, अपना सम स्टोर करेगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, ये प्रीफिक्स जो सम है ना, इसको हम मैप में स्टोर करेंगे विथ इंडेक्स। ठीक है, विथ इंडेक्स हम स्टोर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो जो आपका ऐसे कुछ स्टोर होगा, जैसे कि आप ये मान लो कि -10 है। ठीक है, -10। अब -10 कहाँ, कौन से इंडेक्स तक स्टोर कर रहा है, ये कर रहा है 0th इंडेक्स को स्टोर। उसके बाद हमारा प्रीफिक्स सम आया 10, ये स्टोर करेगा, ये मतलब इंडेक्स को स्टोर कर रहा है 10 1 को, 42 को, और 35 स्टोर करेगा 3 को। सो हम अपने मैप में यहाँ पर क्या स्टोर करा रहे हैं, सम और की। ठीक है, सबसे पहले हमने एक मैप क्रिएट किया, करंट सम की वैल्यू 0 ली है हमने, और यहां से हम सबसे पहले सम करना स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। सम हमने करना स्टार्ट किया, सम हमने कर कर यहाँ पर क्या लिखा, अगर सम की वैल्यू टोटल सम के बराबर आ जाती है तो हमने इंडेक्स को प्रिंट करा दिया। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज ये है अपन का एरे 10 20 30। ठीक है, ये अपन का एरे है, और जो k की वैल्यू है k, वो भी 30 है, हमें 30 ही चाहिए। सो जब हम यहां से सम करते चले जा रहे हैं, जैसे ही हमने 10 जोड़ा और 20 जोड़ा, ये हमारा 30 हो गया। सो बस अपन को करंट सम ही सम की इक्वल मिल गया, तो अपन इन दोनों इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे, है ना। सो अगर जिस भी पॉइंट पर हमारा करंट सम सम के इक्वल हो जाएगा, हम दोनों इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे। 0 से i के बीच में ये हमारा सम पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी आई मेन बात, हमने क्या किया था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि करंट सम में से हम सम को माइनस करेंगे। हमारा जो सम होता चला जा रहा है, उसमें से हम टारगेट सम को माइनस करेंगे मैप में, और अगर वो सम हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था कि यहां पर हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं, और अगर ये माइनस हम जो कर रहे हैं, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे ही हमने माइनस किया करंट सम में से अपने टारगेट सम को, इसका मतलब क्या है, हमारा सम फाउंड हो चुका है सब एरे में। सो हम अपने इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि हमने इंडेक्स स्टोर किए थे। तो मैप करंट सम माइनस सम जो हमने ये फाइंड किया है +1 से लेके ith इंडेक्स तक, हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमारा लूप में चल रहा है, इंडेक्स जो चल रहा है ना करंट सम में, वहां तक का इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में हम अपने मैप में सारे के सारे करंट सम को स्टोर कराते चले जा रहे हैं, और बस हमने ये प्रिंट करा दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको एक बार कोड में बता देता हूँ कैसे क्या हमने किया है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, एक बार आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। -10 20 30 और -5। ठीक है, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। सो एग्जांपल है अपन का -10 और क्या था 20, -10 20 30 और -5। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, करंट सम अपन जोड़ते चले जा रहे हैं। सो यही अपन सम कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम कर रहे हैं, -10 +20 +30 -5, ये अपन का होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि अगर अपन का जितना भी सम हो गया है, क्या वो सम टारगेट सम की इक्वल तो नहीं है। ठीक है, ये चीज अपन ने चेक कर ली। अब आगे क्या करना है, अपन मैप में फाइंड कर रहे हैं, तो इस वाले स्टेप को एक बार चेक करते हैं। जो अपन मैप में फाइंड कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले अपन का ये हो गया -10। ठीक है, -10, उसके बाद ये हो गया अपन का 10, फिर उसके बाद ये अपन का हो गया 40, और ये हो गया -35। अब अपन ये फाइंड कर रहे हैं कि करंट सम, मतलब जितना भी हमारे ये सम चलता जा रहा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था -10 माइनस हमारी जो टारगेट वैल्यू थी, जो कि हमारी 25 थी, उसको अगर हमने माइनस किया, क्या वो पहले एग्जिस्ट करती है, वही हमने किया है। क्या वो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है, बस हम वही प्रिंट करा देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, ये वाली इस जगह पर, तो जैसे ये एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने बस वही इंडेक्स प्रिंट करा दिया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इसका जो। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, एंड उसी प्रकार के काफी क्वेश्चन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर हमने मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करा रखा है आपको कोडिंग शीट के अंदर। सो कोडिंग शीट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पूरा कलेक्शन भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। ऑल्सो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर, एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट है, एंड सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, रीजनिंग क्वांट जो भी पूछा जाता है, एडवांस का जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे सेट्स अवेलेबल है। सारे सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मौजूद हैं, और डेली प्रैक्टिस आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नाउ, हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन को। एंड इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ,
ये पिछले 2-3 सालों से लगातार इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ रहा है टीसीएस के एग्जाम में। और मैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है कोडिंग के जो टीसीएस पूछती रहती ही है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और लगभग सिमिलर क्वेश्चंस टीसीएस पूछती रहती है। इस वीडियो में हम जो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में काफी बार टीसीएस ने रिपीट किया है, पूछा है, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्लस ये क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट में है जिसमें टीसीएस पूछ रही है, बिकॉज टीसीएस का जो फॉर्मेट होता है ना क्वेश्चन पूछने का, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, और काफी बच्चों को दिक्कत आती है उसमें इनपुट्स वगैरह लेने में। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इस प्रकार की जितनी भी वीडियोस हैं उस पर आप लोगों का मैक्सिमम सपोर्ट हम लोगों को चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग चाहते हो कि और ऐसी वीडियोस आए, सो आपको इस वीडियो पर सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है वीडियो पर, और आपको वीडियोस मिलती चली जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, रिया इज डेवलपिंग अ टेक्स्ट एनालाइजर टूल फॉर हर कॉलेज प्रोजेक्ट। द टूल नीड्स टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच कैरेक्टर अपीयर इन गिवन स्ट्रिंग। ओके, however she must ignore spaces and count both uppercase and lowercase letters as the same character. For example, a and a should be treated as the same. Okay, so this is given in the question that जो अपर केस है और लोअर केस है वो भी दोनों जो है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, चाहे आपका अपर हे हो या आपका लोअर ए हो, ये दोनों ही आपका एक सेम कैरेक्टर यहाँ पर माना जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू हेल्प रिया टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग, प्रिंट द रिजल्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, a single line string s which may contain alphabets and spaces is given in the input format। आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक एग्जांपल दिया है हेलो वर्ल्ड। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि पहली बात तो अलग अलग वर्ड्स के बीच में स्पेस हो सकता है। तो अगर आप सपोज डायरेक्टली स्ट्रिंग को इनपुट में लोगे तो क्या होगा कि केवल जो पहला वर्ड होता है ना, केवल वही इनपुट में आता है। जो बाद वाला वर्ड है वो इनपुट में नहीं आएगा अगर वो स्ट्रिंग हुआ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप डायरेक्टली इसका स्ट्रिंग में इनपुट नहीं ले पाओगे। फिर आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है डी के सामने 1, बिकॉज अगर आप पूरी स्ट्रिंग को देखोगे तो इसमें डी एक बार रिपीट हुआ है, ई भी एक बार रिपीट हुआ है, एच एक बार रिपीट हुआ है, एल 3 बार रिपीट हुआ है, ओ 2 बार रिपीट हुआ है, आर एक बार रिपीट हुआ है, और डब्ल्यू यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ है। बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है, और कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर मेंशन करी गई है। और यहाँ पर स्पेसेस को इग्नोर किया है, साथ साथ में अपर केस और लोअर केस लेटर दोनों को साथ में यहाँ पर माना गया है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे टीसीएस निंजा एग्जाम, सो ए 2 बार आया है, सी एक बार आया है, ई एक बार आया है, तो इस प्रकार से हमको ये बेसिकली करना है, और जो इसमें से हमें रिमूव करना है। सो बेसिकली जैसे टीसीएस निंजा एग्जाम, ये कुछ कैपिटल लेटर में लिखा है, कुछ लोअर लेटर्स में लिखा है। तो इसको अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो सबसे पहले स्पेस रिमूव कर दिया और सबको हमने लोअर केस लेटर्स में डाल दिया। तो ऐसा देखने को मिलेगा टीसीएस निंजा एग्जाम। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यही करते हैं सबसे पहले, और अपने लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरे दिमाग में जो लॉजिक आया है, वो लॉजिक क्या है कि बेसिकली हमको एक स्ट्रिंग दी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग का एक इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग लेने के बाद हम ये चीज देखते जाएंगे कि क्या स्पेस है। अगर स्पेस है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, और अगर स्पेस नहीं है तो जो भी कैरेक्टर आएगा उसको हम लोअर केस में चेंज करेंगे, और लोअर केस में चेंज करने के बाद उसकी हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करते चले जाएंगे। तो ये काम हम यहाँ पर करने वाले। तो ये सिंपल सा लॉजिक मैं लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोडिंग क्वेश्चंस को, साथ साथ में अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हो अपने आसपास के बच्चों के साथ, जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो हमने यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आज फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन दोनों का टेस्ट लाइव है इस वाले सेक्शन में। अगर आप जाओगे ना, विच इज दिस वन, टीसीएस एनक्यूटी एक्चुअल एग्जाम बेस्ड टेस्ट, तो आज यहाँ पर एडवांस जो सेक्शन है उसका पूरा का पूरा टेस्ट लाइव है, और जो फाउंडेशन सेक्शन है उसका भी जो टेस्ट है वो पूरा लाइव है। तो इसमें आप compete कर सकते हो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, और आप देख सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। और ये फुल मॉक टेस्ट है, मतलब जितने 65 क्वेश्चन आते हैं उतने पूरे मिलेंगे, एडवांस में भी उतने मिलेंगे, और इसके अलावा डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो कितने सारे मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करा चुके हैं डेली प्रैक्टिस के लिए, और नीचे प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए हैं अलग से
800 से ज्यादा क्वेश्चन है, और कोडिंग क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर शीट्स मिल जाएंगी। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना टीसीएस के, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर सारी कंपनीज के क्वेश्चन है, बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कंपनीज पूछती हैं। तो जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कंपनीज पूछती है, तो उसकी एक पूरी 367 पेजेस की शीट मिल जाएगी, और टीसीएस के पीवाईक्यू कोडिंग क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन 89 पेजेस की शीट में मिल जाएंगे। तो ये सब आपको मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी देखो आपके लिए टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए, और जितना ज्यादा आप लेट होगे प्रिपरेशन के लिए उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सो अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हो, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज्वाइन करें। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, बिकॉज यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे हर चीज के बारे में। ओके, अब क्वेश्चन का एक बार लॉजिक लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमें समझ में आ ही गया था। तो देखो, सबसे पहले हमें सपोज एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रिंग एस। बट उसमें क्या है, स्पेस हो सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमारी ये है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे ना, तो इसमें स्पेस है बीच में, तो हम डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकते। अब डायरेक्ट इनपुट अगर हम इसमें नहीं ले सकते, तो हम इसमें क्या कैसे लेते हैं सी प्लस उसमें इनपुट। वैसे ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है। सो गेट लाइन से हम यहाँ पर पूरी की पूरी जो लाइन होता है उसका हम इनपुट ले लेते हैं। सो गेट लाइन में हम यूज करेंगे सी इन एंड एस। इससे क्या होगा, जो पूरी लाइन होगा ना, पूरी लाइन का इनपुट आ जाएगा। जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये पूरा हेलो वर्ल्ड आपको एज अ इनपुट इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना मैप क्रिएट कर लेते हैं। तो मैप हम ऐसे क्रिएट करेंगे। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर मैप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। अगर नहीं पता, चलो इसका भी लॉजिक आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, मैप को क्रिएट करेंगे, और मैप में हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले हमने सपोज ये एम्प्टी एक मैप है, इसको क्रिएट कर लिया। अब सपोज हमारी ये है हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब सबसे पहले एच आया, तो एच सबसे पहले मैप में स्टोर होगा यहाँ पर इस जगह पे, और एच की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी। तो एच की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, तो इसके सामने 1 स्टोर हो जाएगा। फिर ई आया तो ई स्टोर हो जाएगा, ई के सामने 1 हो जाएगा। फिर एल आया तो एल स्टोर हो जाएगा, फिर एल के सामने 1 स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो दोबारा से एल आया। अब अगर दोबारा से एल आया, तो हम क्या करते हैं कि मैप में सबसे पहले ये चीज चेक करी जाएगी कि क्या एल पहले से एग्जिस्ट करता है। तो हम देखेंगे यस एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है, तो उसी जगह की फ्रीक्वेंसी को +1 कर देंगे, मतलब 1 + 1 हो जाएगा 2। और आपको ये बात बताना चाहूंगा, इनिशियल मैप में सभी चीजों की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ठीक है। जैसे जितने भी कैरेक्टर्स आप डालोगे ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो फ्रीक्वेंसी हम अपने मैप में काउंट करते चले जाएंगे सारे के सारे कैरेक्टर्स की, ठीक है। अभी कोड लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, ये हमने अपना मैप बना लिया जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। अब एक लूप चला लेते हैं, ठीक है। एक ऑटो लूप चला लिया मैंने अपना स्ट्रिंग जो है एस, उसमें सी एच क्या करेगा, एक एक करके जितने भी कैरेक्टर्स है उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा। अब हमारा यहाँ पर चूंकि लूप चल चुका है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू क्या स्पेस तो नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो हमें आगे प्रोसीड करना है, बिकॉज अगर वैल्यू सपोज स्पेस हुई, तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो अगर स्पेस नहीं है तभी हम यहाँ पर आगे जाएंगे। एंड उसके बाद हम अपना जो कैरेक्टर है उसमें हम लोअर केस यहाँ पर स्टोर करा लेंगे। जो भी कैरेक्टर है ना, उसका लोअर केस यहाँ पर हम स्टोर करा लेंगे। तो उसके लिए टू लोअर फंक्शन हम यूज करेंगे, और हमारा जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे आएगा, सी एच में। तो कैरेक्टर को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज लोअर केस और अपर केस हमको यहाँ पर सेम ही रखना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे जो फ्रीक्वेंसी मैप है उसमें हम अपने कैरेक्टर को यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे, फ्रीक्वेंसी को कर देंगे ++। जैसा मैंने बताया था कि जो जैसे ही आप कैरेक्टर को इंसर्ट करते हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है उसकी, 0। जैसे सपोज हेलो वर्ल्ड में सबसे पहले एच आया, तो एच इंसर्ट हो जाएगा, और एच की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 0। तो फिर अपन ++ करा देंगे, तो एच की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1। फिर ई इंसर्ट होगा, तो ई इंसर्ट हो जाएगा, तो ई की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 0। फिर उसके बाद उसके ++ करा देंगे, तो कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 1। सो ऐसे ये चलता रहता है। अब सपोज अपन एल पे आए, तो एल की भी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, देखो ऐसा चलेगा अपने मैप में। एल इंसर्ट हो जाएगा, एल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। और फिर हम यहाँ पर एक्सक्यूट कराएंगे ++, तो एल की यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से एक नया एल आया। अब दोबारा से नया एल आया, तो ये जो फ्रीक्वेंसी सी एच है ना, तो इसमें दोबारा से एल जाएगा। तो मतलब ये इस पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, इस जगह पे दोबारा आ जाएगा जहां पर एल के सामने लिखा है 1। और फिर से हम कर देंगे ++, तो एल का ये जो 1 है ये रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो एल की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि एल यहाँ पर 2 बार आ चुका है। सिंपल है। अगर आपको मैप्स नहीं आते, तो मैप्स जरूर पढ़ लेना, एसटीएल पढ़ लेना, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पढ़ लेना। उसके बिना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ये मैंडेटरी है, प्री रिक्विजिट है कि आपको मैप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें बस फ्रीक्वेंसी प्रिंट कराना है। फ्रीक्वेंसी हमारे सामने आ चुकी है, तो एक लूप चला लेते हैं, ठीक है। एक इटरेटर क्रिएट कर लेंगे। इटरेटर क्रिएट करेंगे हम अपने फ्रीक्वेंसी मैप का, ठीक है। ये हमने अपना इटरेटर क्रिएट कर लिया। अब इटरेटर क्रिएट करने के बाद हमें बस प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं IT.first। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, की प्रिंट कर देगा यहाँ पर।
एंड की प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो हो जाएगा IT डॉट सेकेंड। ठीक है, तो आई थिंक इतना जो हमारा है ये काम करना ही चाहिए, इतना कोड हमारा काम कर जाएगा। बाकी इसको एंड लगा देते हैं यहाँ पर, बिकॉज एंड लाइन नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे। इसको रन करते हैं एक बार, देख लेते हैं कोई कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। आई थिंक कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा कोड, किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं आ रहा है। इसमें हम इनपुट डाल के एक बार देख लेते हैं। तो इनपुट हमारा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड हमारा इनपुट था, इसको हम रन करा के देखते हैं एक बार। तो देख सकते हो आप, डी के सामने 1 है, ई के सामने 1 है, एच के सामने 1 है, एल के सामने 3 है, ओ के सामने 2 है, आर के सामने 1 है और डब्ल्यू के सामने 1 है। तो जो हमारा इनपुट है वो बिल्कुल सही रन किया है और जो कोड है वो भी बिल्कुल सही एग्जीक्यूट किया है। टीसीएस में भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इनपुट आप इसी प्रकार से लोगे जैसा मैंने आपको बताया है, और इस प्रकार से ही जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले काफी बार पूछा गया है। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं टीसीएस के कोडिंग में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल बी सॉल्विंग अवर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, तो टीसीएस एनक्यूटी के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी की मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, और इसमें मैं अभी एग्जाम का कट ऑफ की वीडियो भी डाल चुका हूँ, और ये सेकंड वीडियो होने वाली है क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के पेपर में आया था 26 अप्रैल को, वे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सो उसको भी जाके चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वाला एग्जाम पूछा गया था टीसीएस एनक्यूटी के 26 अप्रैल के टेस्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, 26 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक, अब इस एग्जाम इसको जरा सॉल्व करते हैं, और ये इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैंने बोला था पेपर में वही आया है कोडिंग क्वेश्चंस में। देखो मेरे को कोडिंग अच्छी आती है, तो मैं तो आपको कोडिंग के बारे में जानकारी दी थी, और बिल्कुल वही आया है। अगर आप देखोगे तो हैश मैप का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था रिकर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखोगे तो ये रिकर्जन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। सो जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था कि गिवन अ ग्रिड ऑफ एम क्रॉस एन साइज, एम क्रॉस एन साइज का यहाँ पर आपको एक ग्रिड दिया है। ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम यू आर स्टार्टिंग एट 1,1। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो लेट्स अज्यूम दिस इज अवर एम क्रॉस एन ग्रिड। ठीक है, ये अपन का एम क्रॉस एन का एक ग्रिड है। अब ये कह रहा है कि आप 1,1 से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज दिस पोजीशन, ये जो फर्स्ट है इसको हम कहते हैं 1,1, पहली पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो, एंड यू कैन रीच, यू वांट टू रीच टू द गोल m, n। सपोज ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, सो m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3। ये कह रहा है कि आप m, n में पहुंचना चाहते हो, 1,1 से स्टार्ट कर रहे हो, एंड योर गोल इज टू रीच m, n एट एनी इंस्टांस इफ यू आर ऑन x, y, यू कैन आइदर गो टू x, y प्लस 1 और x1 प्लस y। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 1,2 पर हो, ठीक है, तो या तो आप x एक्सिस पे मूव कर सकते हो या आप y एक्सिस पे मूव कर सकते हो। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर x y प्लस 1 पे अपन चले तो अपन ये पहुंच गए 1,2 पर। इसने बोला या तो आप नीचे की तरफ जा सकते हो, तो ये 1,1 से अपन नीचे की तरफ गए तो 1,2 हो गया, या अपन साइड वेज जा सकते हैं, तो 1,1 से अगर अपन साइड में चले तो ये हो गया 2,1। तो इसने ये बोला है कि अगर आप x, y पोजीशन पे हो तो आप या तो x प्लस 1, y तक पे जा सकते हो, या x, y प्लस 1 पर जा सकते हो। ठीक है, अब आपको ऐसे करते करते m क्रॉस n पर पहुंचना है, और आपको यूनिक पाथ्स बताने हैं। बट यूनिक पाथ्स आपको बताने हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल्स भी होंगे जो कि 1 से रिप्रेजेंट होंगे, 1 से रिप्रेजेंट होंगे, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि सपोज आप x, y पे हो, ठीक है, अब अगर मान लिया कि इसके आप इस वाली पोजीशन पे हो, इसकी नीचे वाली जो पोजीशन है वो तो 0 है, लेकिन इसकी जो साइड वाली पोजीशन है वो 1 है। 1 यहाँ पे ऑब्स्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑब्स्टिकल है। सो आप नीचे तो मूव कर सकते हो, बट आप साइड मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जहां भी 1 होगा, जहां भी 1 होगा आप उस पे मूव नहीं कर सकते हो, आप कहां पे मूव कर सकते हो 0 पे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल अपन एक लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। तो यहां पर एक बार साइड में देखना, ठीक है। तो सपोज एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये, ठीक है,
जिसमें वैल्यू है 0 1 0 0। अब अपन 1,1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अपन को m क्रॉस n पे पहुंचना है, मतलब अपन को इस पोजीशन पे पहुंचना है, लास्ट वाली पे। अब इसमें मैं यहां से कौन से मूव्स चल सकता हूं? साइड में 1 है तो मैं साइड में नहीं जा सकता, मैं केवल नीचे जा सकता हूं, तो मैं केवल नीचे मूव करूंगा। ठीक है, मैं केवल नीचे मूव करूंगा यहां पर। सो मैं यहां से चल सकता हूं ऐसे डाउनवेज, और उसके बाद मैं चलता हूं साइडवेज। सो मेरे पास केवल एक पाथ है यहां तक पहुंचने का। ठीक है, और यही फिर हमें प्रिंट कराना है कि हमारे पास टोटल कितने पाथ है, तो एक पाथ है। तो ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को अपन रिकर्जन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सो रिकर्जन से कैसे सॉल्व होगा, पहले मैं आपको यहां पर समझाता हूं इस जगह पर, और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 का एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अपन रिकर्जन से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूं 3x3 का ग्रिड। ठीक है, सो ये मैंने मान लिया कि ये मेरा 3x3 का ग्रिड है। अब इसमें ये है अपन की पोजीशन 1,1। ठीक है, ये वाली पोजीशन 1,1 है, और ये m क्रॉस n है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 1,1 है, और ये है m क्रॉस n, दैट मीन्स 3,3। ठीक है, मेरे को यहां से यहां पर पहुंचना है। ठीक है, ये अपन की फर्स्ट रो है, ये लेट्स टेक सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ठीक है, 1x1 से पहुंचना है 3x3। मैं यहां पर बस रिकर्जन को दो चीजें बताऊंगा कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1,1 से। ठीक है, ये बात मैंने रिकर्जन को बता दिया। आप रुक जाना जब आप 3x3 पे आ जाओ, ये बात भी मैंने रिकर्जन को बोल दी, ये बेस केस आ गया कि अगर 3x3 आ जाए, 3,3 आ जाए, तो आप बस इसी जगह पर रुक जाना और पाथ को काउंट कर लेना। आप इस जगह पर पहुंच गए, मतलब एक पाथ अपन का काउंट हो गया। ठीक है, और यहां पर मैं रिकर्जन को एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप किसी पॉइंट पर हो, अब आपके पास दो मूव है, या तो आप राइट जा सकते हो या आप डाउन जा सकते हो, है ना। अगर राइट में अगर राइट में जैसे सपोज अगर मान लो आप 1,3 पे पहुंच गए, तो आप राइट नहीं मूव कर सकते, क्योंकि 1,4 हो जाएगा, और अपन का मैट्रिक्स है 3,3। तो ये मैं रिकर्जन को बताऊंगा कि अगर आप राइट में लास्ट अंक पे पहुंच गए हो, तो आप साइड में नहीं मूव कर सकते। साथ साथ में अगर आप x में 3, सपोज 1 ये है, सो आप नीचे नहीं मूव कर सकते, क्योंकि यहां भी आप बाउंड्री पे पहुंच गए हो। ठीक है, ये चीज मैं रिकर्जन को बताऊंगा। और क्या बताऊंगा रिकर्जन को, कि अगर कहीं पर 1 आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, क्या क्या चीजें बताऊंगा एक बार मैं लिख देता हूं। अगर आप 3,3 पे पहुंच गए, तो यहीं पर रुक जाओ। अगर आप यहां पर 3 पे पहुंच गए, मतलब जो आपकी यहां पर वैल्यू है वो अगर एक्सट्रीम वैल्यू को टच कर गई, मतलब जो मैट्रिक्स की साइज है अगर उसको टच कर गई, तो आप राइट मूव नहीं कर सकते। जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है अगर वो यहां पर मैट्रिक्स की वैल्यू को टच कर गई, तो आप डाउन नहीं मूव कर सकते। और अगर 1 आता है, तो आप इग्नोर कर दोगे। बस इतना ही बताना है। अगर पाथ में 1 आता है, तो आप उसे इग्नोर कर दो। इतना हमने रिकर्जन को बता दिया, अपन का काम हो जाएगा, ये अपन को पाथ काउंट करके दे देगा। बस अब अपन कोड लिखते हैं, क्योंकि आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अपन को क्या क्या चीजें रिकर्जन को बतानी है, और अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल सा कोड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन ने किया क्या है, जैसा मैंने बताया, ये अपन का मैट्रिक्स है मान लिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर पास किया हुआ है। मैट्रिक्स में आप देख सकते हो 0 0 0 0 1 0 और 0 0 ये है। ठीक है, अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और m क्रॉस n पे पहुंचना है। बहुत सिंपल है, इसका कोड कुछ भी नहीं है। फंक्शन में अपन ने मैट्रिक्स को पास कर दिया। जैसे ही अपन ने फंक्शन में मैट्रिक्स को पास किया, और अपन ने इसको एक दूसरे फंक्शन में पास किया जिससे अपन रिटर्न करा रहे हैं, इसमें अपन क्या करा रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स दैट इज अवर 0,0, ये हमने पास कर दिया। अपन का रो का साइज क्या है, रो का साइज है 3, सो r पास कर दिया। कॉलम का साइज क्या है 3, वो भी पास कर दिया। और अपन ने अपने मैट्रिक्स पास कर दिया। वैसे आपको कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहां से जो मैंने अभी आपको बोला वही हम इसमें कर रहे हैं बस। ठीक है, हमने चेक कर लिया क्या i की वैल्यू r के बराबर है या j की वैल्यू c के बराबर है। ठीक है, सो अपन यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, अपन 0,0 पास कर रहे हैं ना, ये अपन का मूविंग इंडेक्स है। मूविंग इंडेक्स, अगर मूविंग इंडेक्स अपन की लास्ट वैल्यू को टच कर चुका है, जैसे कि 3x3 है, सो अगर मूविंग इंडेक्स जो कि 0,0 से स्टार्ट हुआ है, वो अगर 3 को टच कर चुका है, या तो रो में अपन i से कैप्चर कर रहे हैं, j में अपन कॉलम से कैप्चर कर रहे हैं, तो अपन रिटर्न 0 करा देंगे, क्योंकि भैया ये तो कोई पाथ नहीं हुआ, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमने इस पर रिटर्न करा दिया 0।
दूसरा मैंने आपको बताया था क्या करना है अपन को, अगर अपन को 1 मिलता है तो 1 ऑब्स्टेकल है, 1 को इग्नोर करना है। सो इफ एरे ऑफ ए आई इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न 0। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अगर हम लास्ट कॉलम पे पहुंच गए, लास्ट अगर अपन सेल पे पहुंच गए, मतलब आई की वैल्यू अगर r माइनस वन है और j की वैल्यू अगर c माइनस वन है, सो अपन रिटर्न करा देंगे 1। ठीक है, जैसा कि अभी आपने इसमें देखा था, जो अपन ने डिस्कस किया था, अपन 0,0 से स्टार्ट हुए। जैसे अपन ने यहाँ पे 1,1 लिया था, तो अपन वैसे इसमें ले सकते हैं 0,0 से 2,2। ठीक है, सो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन का m की वैल्यू क्या है, 3 है, और n की वैल्यू क्या है, 3 है। सो अगर अपन पहुंच गए यहां पे 2,2 तक, दैट मींस m माइनस वन और n माइनस वन, मतलब रो माइनस वन और कॉलम माइनस वन, अगर अपन यहां तक पहुंच गए तो अपन सही जगह पे पहुंच गए। तो अपन को पाथ क्या करना है, काउंट करना है। सो r माइनस वन और j इक्वल टू c माइनस वन, अगर अपन बेस केस को टच कर गए तो रिटर्न करा देंगे 1। और अपन को रिकर्जन में क्या रिटर्न कराना है, वही जो अपन का फंक्शन का नेम है वही रिटर्न करा दिया, यूनिक पाथ हेल्पर। और इसमें अपन ने क्या पास करा दिया, i+1, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको, अपन कहां पर मूव कर सकते हैं x से। अभी यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था x से अपन कहां मूव कर सकते हैं, x+1 या y+1। तो वही हमने लिखा है यहां पर, यूनिक पाथ हेल्पर में हमने क्या पास करा दिया, i+1, y का कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, सेम रहेगा j, बाकी अपन ने वही रो कॉलम्स और एरे को पास कराया, प्लस यूनिक पाथ हेल्पर। इस एक तो इससे भी हमें पाथ्स मिलेंगे, और दूसरा और क्या हम कर सकते हैं, x की वैल्यू वही रहेगी, i सेम रही, और y+1। मैंने आपको बताया था ना अपन कहां मूव कर सकते हैं, या तो x+1 पे कर सकते हैं या y+1 पे मूव कर सकते हैं, तो वही लिखा है, या तो i+1 कर सकते हैं या j+1 कर सकते हैं। और जैसे ही अपन बस इसको कैलकुलेट करेंगे, रिकर्जन अपने आप कैलकुलेट कर देगा, अपन को आंसर प्रोवाइड y2। हेलो एवरीवन, सो बात करते हैं इस वीडियो में टीसीएस के सेकंड शिफ्ट के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। और ये बताते हुए मुझे काफी खुशी है कि जो चीजें मैंने बताई थी वहीं से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एंड मैंने आपको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और मैंने बोला था कि टीसीएस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे शिफ्ट्स के एग्जाम हो जाए और मैप्स और सेट से क्वेश्चन ना आए। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इस शिफ्ट में, वो डायरेक्टली आपका मैप से आप सॉल्व कर सकते हो, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी, अगर आपके फेजेस आगे आने वाले हैं तो आपको टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यू कैन चेक द मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट को देकर पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉक टेस्ट में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, यू हैव गिवन एन एरे। उस एरे में यू विल गेट यू विल गेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स, there will be only one element there will be only one element which is repeating one time, which is repeating one time। तो हमको उसी एलिमेंट को क्या करना है, प्रिंट कराना है। फॉर एन एग्जांपल एक एरे दिया हुआ है, अब सपोज इस एरे में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक 1 2 3 4 3 4 2 2 4 3। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अब अगर आप देखोगे तो इस एरे में सारे के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो काफी टाइम रिपीट हो रहे हैं। केवल एक एलिमेंट है विच इज 1, जो कि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, केवल एक ही बार यहाँ पर प्रेजेंट है। सो हमें क्या करना है, आउटपुट में क्या करना है, 1 प्रिंट कराना है, सिंपल। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है और 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटे एरे से एग्जांपल लेते हैं, एक एरे है लाइक 1 2 3 2 3। सपोज इस एरे में हमें प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट कर लेंगे और मैप से फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे तो हमारे पास की में क्या आ जाएंगे, नंबर्स, एंड यहाँ पर उनके सामने हम स्टोर करा देंगे फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली की क्या हो गई, 1, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या स्टोर हो जाएगी, 1। फिर क्या आया, 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। फिर 3 आया, तो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा का पूरा मैप बन गया। अब बस अपने मैप में हम चेक करेंगे, जहां भी फ्रीक्वेंसी वन है उस एलिमेंट को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, सिंपल। उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे जहां भी फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि वही एलिमेंट होगा, क्योंकि वो केवल एक बार रिपीट हो रहा है, बस सिंपल है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे कोड करना चालू कर, तो फटाफट से हम अपने कोड को करना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एरे दिया है, ठीक है, इस एरे का साइज 10 है। तो अगर आप देखोगे तो उसमें 1 रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसमें 2 भी रिपीट कर रहा है, इसमें 4 भी रिपीट कर रहा है, इसमें 6 रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें 5 भी रिपीट कर रहा है। तो उसमें सारे जो एलिमेंट्स है वो रिपीट कर रहे हैं,
बस एक जो एलिमेंट है 6 वो रिपीट नहीं कर रहा, तो फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो एक मैप बना लेता हूं मैं। तो मैप बन गया हमारा। ठीक है, इस मैप का नाम होगा फ्रीक्वेंसी। एक लूप लगाता हूं, फॉर ईच लूप। तो मैं ये फॉर ईच लूप लगाया मैंने एरे पे, और जो भी अपना फ्रीक्वेंसी का मैप है उसमें मैंने एलिमेंट्स को पुट कर दिया और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब ये हमारा पूरा का पूरा जो मैप है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस हमें अपने जो भी मैप है उस पर लूप लगाना है। तो मैंने अपने मैप पर लूप लगाया। मैप पर लूप लगाने के बाद मैं क्या चेक करूंगा कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। सो पी डॉट सेकेंड इक्वल्स टू 1। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 है, हमें सिंपली क्या करना है, अपने एलिमेंट को प्रिंट करा देना है। तो मैं कर दूंगा पी डॉट फर्स्ट। आई थिंक ये आंसर सही होगा। एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, चेक करते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो 6 आ रहा है, और 6 ही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें केवल 6 ही है जो रिपीट नहीं कर रहा, बाकी सारे एलिमेंट्स तो रिपीट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था टीसीएस के एग्जाम में। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि सेकंड क्वेश्चन क्या आया था, एक बार बता दो, टाइप कर दो, इससे मैं उसका भी सॉल्यूशन टाइप करके आपको बता दूंगा। और ये बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा आप लोग कैसे हो? सबसे पहले ये बताओ कि आपका कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह कैसे हुए। एक कोडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले ही डाल दिया है। और आप में से जितने भी बच्चे अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं टीसीएस की, तो आपको बेटा मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो मिल जाएगी यहाँ पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हो। और अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, परचेज कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी अगला फेज। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एंड ज्यादातर बच्चों को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई है। एंड मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि नहीं किया मुझे जरूर बताना। एंड जितना मुझे समझ में आया, बिकॉज मैंने एक बच्चे से कॉल पे पूछा है, तो जितना मुझे समझ में आया ना क्वेश्चन, मैं उस हिसाब से जा रहा हूँ। हो सकता है कि चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि मुझे मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, मैंने बच्चे से पूछा है कि बेटा क्या आया था क्वेश्चन में बताओ जरा, तो उसने जो बताया है तो मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ। तो मुझे बताना कि आपका क्वेश्चन कैसा गया और आप उसको सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यहाँ पर कुछ टेस्ट केसेस दिए हैं। जैसे सपोज 3 टेस्ट केसेस दिए हैं। अब 3 टेस्ट केसेस में यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स दिए होंगे 3 एरेज में। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक नंबर मैं आपको बताता हूँ विच इज 2 to 4। सपोज ये आपके टेस्ट केसेस हैं 1 2 3, देन 4 6 7। अब आप यहाँ पे दो ऑपरेशंस कर सकते हो कि आपको कोई भी 2 नंबर्स आपको पिक करने हैं। अब वो उन 2 नंबर्स को पिक करके आपको +1 करना है, एंड जो भी एक बचा हुआ नंबर है उस पे आपको -1 करना है। तो एक नंबर जो आप जो भी करोगे, 1 नंबर जो भी आपका बचा, उसमें आप क्या करोगे, -1। आपको ये चीज करनी है। 3 नंबर्स का एरे है, 2 नंबर उठाओगे उसमें +1 करोगे, एक नंबर में आप -1 करोगे। जितना मुझे बच्चे ने बताया मैं उतना बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जो तीनों नंबर्स हैं उन्हें इक्वल आना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं पहला टेस्ट केस यहां पर उठाऊं विच इज 2 to 4, तो 2 to 4 में अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूं तो मैं यहां पर ये दो नंबर्स पिक करूंगा विच इज 2, 2। तो मैं यहां पर लूंगा 2, 2। इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3, इस वाले 2 में भी 1 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 3, एंड ये जो 4 है इसमें मैं -1 करूंगा ये भी हो जाएगा 3। तो ये इक्वल हो चुके हैं दो। और ये जो दोनों ऑपरेशन है हमें साथ में करने हैं। मतलब हम जब भी 2 नंबर्स को पिक कर रहे हैं, हमें उसमें एडिशन करना है और एक नंबर में -1 करना है। ठीक है, और ये ऑपरेशंस जो है हमें साथ में करने हैं और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बताना चाहता हूं। अगर इसमें समथिंग रिलेटेड टू कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ, अभी मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं है क्वेश्चन को देखने को, क्योंकि जैसे ही अभी एग्जाम खत्म हुआ है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल अभी आधा घंटा हुआ है एग्जाम को खत्म हुए, और तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको मिल जाएगी ये वीडियो 1 से 2 घंटे में। एंड अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी केवल आधा घंटा हुआ है एग्जाम खत्म हुए, तो मुझे उतना सोचने का मौका नहीं मिला। अगर ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो ये इजी क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ ना कुछ मैथ्स का लगेगा। बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं रिकर्जन से। मैं आपको अप्रोच समझाता हूं कि हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर पहले तो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर जैसे कि ये हमारे नंबर्स हैं लाइक 2 to 4 या 4 6 7, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल 2 to 4 है या 4 6 7, ठीक है। तो इसमें अगर किसी भी टाइम हम दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं, हमें 2 नंबर्स को पिक करना है, एक में 2 नंबर्स में +1 करेंगे एंड बाकी एक बचे हुए नंबर में हम -1 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी मिनिमम नंबर है, लाइक सपोज 4 मिनिमम नंबर है, तो जब हम -1 करेंगे ना नंबर्स में, तो ये जो मिनिमम नंबर है इससे मिनिमम अगर आंसर पहुंचा तो उस वक्त हम रिटर्न करा सकते हैं कि नहीं भैया ये आंसर जो है वो वैलिड नहीं होगा, हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर सपोज किसी भी पॉइंट पर जो आंसर है वो मैक्सिमम से ऊपर निकल जाता है, जैसे सपोज हमें 4 6 7 दिया है, तो अगर 7 से ऊपर निकल गया आपका आंसर, तो यहां पर भी हम -1 रिटर्न कर देंगे कि नहीं भैया ये आंसर जो है ये वैलिड नहीं होगा। बिकॉज बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी एक एरे दिया है फॉर एन एग्जाम्पल 4 6 7, ठीक है, तो यहां पर जब हम
दो नंबर्स में +1 कर रहे हैं और एक नंबर में -1 कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मिनिमम एलिमेंट से एलिमेंट छोटा हो गया -1 करने की वजह से, या किसी भी वक्त मैक्सिमम एलिमेंट से कोई एलिमेंट बड़ा हो गया, तो उस वक्त हम क्या करेंगे बेटा, एग्जिट कर देंगे कि नहीं यहां से हट जाओ, अब हमारा जो आंसर है इस पर नहीं आ सकता। ठीक है, पहली बात ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ठीक है, 2 2 4। अब हमें कोई भी दो नंबर्स पिक करना है तो हम सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। लाइक एक कॉम्बिनेशन जैसे ये 2 2 4 है, इसको हटाओ, कंफ्यूजन होगा, हम जैसे 1 3 5 ये लेते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे कि भैया 1 और 3 को पहले रखो एंड 5 को बाद में रखो, ये कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा हम बना रहे हैं 1 को रखो, 5 को रखो, फिर 3 को रखो। तीसरा कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं 1 को मत रखो, यहां पर 3 को रखो, देन यहां पर 5 को रखो, या यहां पर 1 को रखो। तो ये हमने कॉम्बिनेशंस कुछ बना दिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने बनाए हैं। या फिर आप इसको सीधे सीधे ये बोलो, ये कॉम्बिनेशंस हटाओ। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। ये तीन नंबर्स हैं 1 3 5। तो सपोज ये x है, ये y है और z है, तो हम कहेंगे हमारे तीन ऑपरेशंस होंगे। अगर सपोज हमने x और y को पिक किया है तो x+1, y+1 और z-1। एक तो ये ऑपरेशन हो सकता है। अगर सपोज हमने x+1 एक ये नंबर पिक किया है एडिशन के लिए, y हमने माइनस में लिया है और z लिया है +1 के लिए। एक और ऑपरेशन मान लो जिसमें हमने x को माइनस में लिया है, y को +1 में लिया है और z को +1 में लिया है। क्योंकि दो नंबर हमें पिक करने हैं जिसमें +1 करना है और एक नंबर में -1 करना है। तो ये तीन कॉम्बिनेशंस बेटा हमारे बन सकते हैं। तो हम ये तीन कॉम्बिनेशंस का यूज करेंगे रिकर्जन के थ्रू। एंड इसमें जो भी ऑपरेशन हमें मिनिमम ऑपरेशंस रिटर्न करेगा उसको हम आंसर में प्रिंट कर देंगे। सिंपल सिंपल है। ये तीन ही हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस को हम यूज करेंगे। जो भी ऑपरेशन मिनिमम ऑपरेशन रिटर्न करेगा उसको हम आंसर में रिटर्न कर देंगे। कोड देख लेते हैं सीधे सीधे इसका एक बार। और अगर आपको मॉक टेस्ट लेना, मॉक टेस्ट ले लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 5 मॉक टेस्ट है अगर आपका फेज आने वाला है आगे तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अब जैसे इंडिविजुअल टेस्ट केस मैं आपको सॉल्व करा के नहीं बता रहा, आपको एक टेस्ट केस सॉल्व करा के बता रहा हूं, जिसमें सपोज आपको एक एरे दिया है और एरे आपका कुछ ऐसा है। जैसे सपोज आपका जो एरे है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, 2 2 4। तो अब आपको पता है कि इसमें तीन ही नंबर्स हैं, लाइक 2 2 4। तो आप क्या करोगे कि एक नंबर को x में स्टोर कर लोगे, एक को y में कर लोगे, एक को z में। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर सपोज आपका ये एरे है ना, अगर ये आपका एरे है सपोज 2 2 4, मैं आपको ये बस स्टेटिक सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू x ऑफ 0, y इक्वल टू x ऑफ 1 एंड z इक्वल्स टू x ऑफ 2। ठीक है, तो ये अपन की वैल्यूज आ जाएंगी x y और z में। अब हम क्या करेंगे, इसका मिनिमम एलिमेंट ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें कांस्टेंट्स के साथ खेलना है। तो मिनिमम एलिमेंट इन तीनों में क्या है, हमने ऑपरेशन करके निकाल लिया, मिनिमम ऑफ x, y, z। तो यहां पर मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, राइट। तो अब हम इसको अपने सॉल्व वाले फंक्शन में पास करेंगे जो कि हमारा आंसर रिटर्न करेगा। तो सॉल्व में हमने तीनों पास कर दिए, विच इज x, y, z। अब हमने यहां पर चेक किया कि क्या हमारा कोई भी नंबर मिनिमम एलिमेंट से छोटा है। अगर किसी भी वक्त हमारा नंबर मिनिमम एलिमेंट से छोटा है तो उसी वक्त हम यहां पर 1E9 रिटर्न करा देंगे। और 1E9 रिटर्न कराने का क्या मकसद है, क्यों हम करा रहे हैं 1E9 को रिटर्न, क्योंकि हमें मिनिमम ऑपरेशंस चाहिए और यहां पर हम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, जिससे हमारी जो ये वाली वैल्यू है वो नेग्लेक्ट हो जाए, इस वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस ही ना रहे, इसलिए हम यहां पर 1E9 को रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा ही हम करते हैं जब ऐसी सिचुएशंस होती है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने कोडिंग वगैरह सीखी है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, अगर x की वैल्यू बड़ी है मैक्स एलिमेंट से, y की वैल्यू बड़ी है मैक्स एलिमेंट से, या z की वैल्यू बड़ी है मैक्स एलिमेंट से, तो भी हम 1E9 को रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी हमारे कांस्टेंट्स जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं, हमारे कांस्टेंट्स क्रॉस कर चुके हैं, और यहां पर भी हम रिटर्न करा देंगे। अब हमारा मेन चीज आती है, अगर किसी भी पॉइंट पर x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू z है, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल हो चुकी हैं जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो उस वक्त हम रिटर्न 0 करा देंगे कि इस वक्त हमें किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। x y और z तीनों की वैल्यू यहां पर बराबर है, कोई भी ऑपरेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो हम रिटर्न करा देंगे 0। एंड लास्ट में हम क्या रिटर्न कराएंगे 1 प्लस, क्योंकि एक ऑपरेशन यहां पर लगेगा, एक ऑपरेशन लगेगा क्योंकि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। हम क्या करेंगे, अपने ये सेम फंक्शन जो कि सॉल्व फंक्शन है उसमें पास करेंगे x+1 y+1 z-1। ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया जिसमें हम x और y को पिक कर रहे हैं।
एडिशन के लिए और जेड को -1 के लिए। दूसरे ऑपरेशन में हम एक्स और जेड को पिक कर रहे हैं एडिशन के लिए, वाई को -1 के लिए। तीसरे ऑपरेशन में हम एक्स को -1 कर रहे हैं, वाई और जेड को हम +1 के लिए पिक कर रहे हैं, और इसको हम रिटर्न करा देंगे, फाइनल में हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 135 हमारा आंसर है, मतलब सपोज ये टेस्ट केस हमें दिया है, हमारा आंसर आ गया 3, बिल्कुल करेक्ट है, 3 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2 to 4 है, 2 to 4 को चेक कर लेते हैं, तो 2 to 4 में केवल एक ही ऑपरेशन लगेगा ना, एक ही ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि हमने 2 और 2 को पिक किया तो कितना हो गया, 2 + 1 2 + 1 3, एंड 4 में से -1 किया तो 3, तो ये बराबर आ गया। तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल प्रॉपरली और सही वर्क कर रहा है। आप बताना मुझे कितने क्वेश्चन, कितने टेस्ट के सामने सॉल्व किए, या आप सॉल्व कर पाए या ना कर पाए, मेरे को जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कैसे सॉल्व करना था। एंड जितना मुझे आइडिया लग रहा है, मैं अपने आइडिया के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज अभी मेरे को क्वेश्चन ऐसा प्रॉपर क्लियर नहीं है, बिकॉज जिस बच्चे ने मुझे मुंह से बताया कि भैया ये क्वेश्चन आया था, तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस थे क्वेश्चन में, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, जिससे मुझे पता पड़ पाएगा कि हाँ भाई जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था उसमें ये बहुत चेंजेस थे। बिकॉज अभी जो क्वेश्चन मुझे बताया, बच्चे ने बताया, और क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, मैंने कोडिंग की वीडियो बनाई थी, ठीक है, और मुझे इतनी खुशी है, मैंने उसमें बोला था कि एक क्वेश्चन आप गारंटी उठा लो कि नंबर से आएगा, और जो ये क्वेश्चन था ये नंबर से ही था। ये जो क्वेश्चन था नंबर से था। मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा जिसमें आपको लूप वगैरह लगाना होगा, नंबर्स पर कुछ ऑपरेशन करना होगा, और उससे यहां पर आपका आंसर आएगा। बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप टीसीएस को देखो तो लास्ट ईयर टीसीएस के सारे जो क्वेश्चन थे वो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को मिला था। तो ये बात मैंने बोली थी कि भाई पहली शिफ्ट में तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, और वही क्वेश्चन हमें देखने को मिला। और आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपके कितने टेस्ट केसेस पास हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक रेंज दी है, ठीक है, रेंज है जो कि 0 से लेके आई थिंक 9999 तक होगी। ठीक है, 0 से लेके कितनी होगी, 9999, ठीक है, यहां तक आपकी रेंज होगी। इसके बीच में आपको कुछ भी दो आई टू जे के नंबर दिए होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा टेस्ट केस आपको बताता हूं। जैसे सपोज आपका आई दिया है 3 एंड जे दिया है 6, लेट्स टेक 6, ओके। सो ये जो होगा ये 0 से लेके 9999 के बीच में ही ये जो नंबर है आपका होने वाला है। सो आपको दो नंबर्स दिए होंगे जो कि 0 से लेके 9999 के बीच में होंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के सारा का सारा जो सम है वो आपको प्रिंट करना है, विच इज अगर आई 3 है और जे 6 है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 3 + 4 + 5 + 6। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि भैया ये तो सिंपल ही क्वेश्चन लग रहा है, बट ये उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि चक्कर क्या फंसा है इसमें, और ये क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल क्यों नहीं हो पाया। एंड काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, टेस्ट केस मिस हुए। साथ साथ में यहां पर जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि काफी बच्चों को आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही थी कि आउटपुट कैसे देना है। ठीक है, आउटपुट में भी थोड़ा बहुत इशू आया। अब आउटपुट का जो एग्जैक्ट इशू है वो मुझे नहीं पता, अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे को बस बच्चों ने ये बताया कि भैया आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपको कोई इशू आया मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज आपकी सॉल्व करा दूंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना था सारे केसेस के साथ, एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज करनी थी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि उनने यहाँ पर एक चीज मेंशन कर रखी थी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको, काफी बच्चों ने ये चीज मिस करी कि एक्चुअली में इसके जो टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पर पास हुए। सब बच्चों को समझ में आया कि हाँ 3-4 केसेस पास हो गए, बट लास्ट के जो 2-3 केसेस थे वो फेल हो गए। अब 2-3 केसेस क्यों फेल हुए, उसका मेन रीजन ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब काफी बच्चों ने जो डायरेक्टली इसमें लूप लगा दिया, लूप लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आया इस वाले क्वेश्चन में, और उस चक्कर में यहाँ पर जो टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पर फेल हो गए। सो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर 3 to 6 अगर दिया है, मैं छोटे से आपको एक टेस्ट केस से समझा रहा हूं। सपोज यहाँ पर एक रेंज दिया आपको आई टू, लेट मी एक्सप्लेन, एक रेंज दी है आई टू जे। अब यहां पर जो आई है इसकी वैल्यू 3 है एंड सपोज जे की वैल्यू यहां पर 6 है, तो आपको क्या करना है 3 + 4 + 5 + 6। तो आप इसको सम करोगे कितना आएगा आपका 11 4 15 एंड ये आ गया आपका 18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर आप सपोज आपने एक लूप लगाया फॉर करके, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, एंड यहां से आपने लूप लगाया आपका आई से लेके चल रहा है कहां तक, जे तक आपका ये लूप चल रहा है, एंड आपने सीधे सीधे सम करा दिया, सम करा के आपका जो आंसर है वो 18 आ गया। ठीक बात है। अब यहां पर
प्रॉब्लम क्या हुई, अगर नंबर रेंज बड़ी है तो यहाँ पर जो बड़े वाले टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पर फेल हो रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में, और ये एक इशू था जो इसमें आ रहा था। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने टोटल अराउंड शायद 50 या 55 मिनट्स ऐसा कुछ टाइम था जो उन्होंने दिया था, बिकॉज दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये सेकंड क्वेश्चन था एंड आई थिंक स्टूडेंट गॉट अराउंड 50 to 55 मिनट्स फॉर दिस वन, ठीक है। सो उस हिसाब से तो काफी ज्यादा इजी है। एंड जैसा मैंने बोला था, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो डेफिनेटली आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो सिंपली देखो, अब मैं आपको पहली ट्रिक बताता हूं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अपन का n1 है जो कि है 3, एंड जो n2 है वो है अपना 6, ठीक है। तो ये दो नंबर है, इनके बीच में अपन को सम निकालना है। तो हम पहले तो ऐसे लूप लगाने वाली जो ट्रिक है जो ज्यादातर बच्चों की फेल हुई है वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। सो i इज लेस देन इक्वल्स टू n2 i प्लस प्लस, ओके। एंड यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं जरा, इंट सम इक्वल्स टू 0, एंड ये आ जाएगा सम प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है। लेट्स गिव इट सी आउट सम, ठीक है। तो 3 से 6 के बीच में आपको पता है कि आंसर कितना आना चाहिए, आप लोगों को पता ही है। इसको मैं हटाता हूं। कंपाइलर को लेके बहुत सारे इश्यूज आए हैं बच्चों को, मुझे पता है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बट पहले मैं सोचा कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करा देता हूं जल्दी जल्दी से। सो इसका आंसर आप देख सकते हो 18 आ चुका है, तो ये बात ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पर जो टेस्ट केसेस फेल हो रहे थे उसका रीजन ये था, इसको कांस्टेंट टाइम में सॉल्व करना था। एंड कांस्टेंट टाइम में सॉल्व करने के लिए एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज n बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय n बाय 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला होता है विच यू नीड टू यूज इन दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपके टीसीएस के एग्जाम में अगर आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करना कि आप नंबर सिस्टम से कोई फॉर्मूला यूज कर पाओ जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो कांस्टेंट टाइम में सॉल्व हो पाए। सो अब इसमें n कैसे निकलेगा, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सी बात है। देखो 3 और 6 के बीच में टोटल कितने नंबर होंगे, 4 नंबर होंगे, और वो हमने कैसे निकाला, n2 माइनस n1 प्लस 1, ये कर देंगे सिंपली। 4 आपकी टर्म आ गई, टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितनी है, नंबर्स कितने, तो 4 नंबर्स हैं वो ऐसे आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है n1, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म क्या है n2, तो यहाँ पे लिख देंगे n2, ये हो गया सॉल्व। एंड ये सम की वैल्यू हमारी आ जाएगी, लास्ट में सी आउट करा देंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको जरा एग्जीक्यूट कराते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो ओके, यहाँ पर सॉरी n बाय 2 होता है, तो n बाय 2 नहीं किया है हमने, n बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका n बाय 2, ठीक है। n बाय 2 ये हमारा आ गया n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो आंसर आ चुका है 18। एंड यही हमारा आंसर था जो कि टीसीएस में हमें निकालना था। तो अगर इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत अगर चेंजेस थे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जितना मुझे बच्चे ने बताया, मेरे को जितना समझ में आया उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। एंड आई होप, क्वेश्चन तो यही था एक्जैक्टली सेम जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन यही सेम था, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट कुछ ऊपर नीचे हो तो उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट ये क्वेश्चन आया था तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व करा दिया है। आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप TCS NQT 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड यहाँ पर जो एग्जैक्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। दाएं बाएं का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है TCS NQT में एक एक शब्द के साथ वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विथ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड पूरी अप्रोच कैसे सॉल्व करना है वो सब मैं आपको समझाऊंगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पर जनरली इजी आ जाता है और एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मीडियम हो सकता है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो हम तीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। एंड उन तीन क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो इजी है, जो इजी की कैटेगरी वाला था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मीडियम कैटेगरी का है और थर्ड वन भी यहाँ पर इजी है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये TCS NQT 2026 फ्री प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। ये जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसकी ये आपकी वीडियो होने वाली है। सो इफ यू वांट कि ये जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है ये कंटिन्यू रहे, आगे भी इस प्रकार की वीडियोस आती रहें, बाय 2। सो पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं और आपको बताता हूं। ये TCS NQT के 2021 एडिशन में पूछा गया था, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, TCS NQT 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो मैं बताता हूं। अब इस क्वेश्चन का नाम है पेयर डिविजिबल बाय 2।
अब ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट शायद आपको नहीं लगेगा सुनने में, बट यहां पर एक जो चीज है जो इसको लिटिल डिफिकल्ट बनाती है वो ये है कि पेयर शुड बी यूनिक। सो इस क्वेश्चन को अपन बोल सकते हैं यूनिक पेयर डिविजिबल बाय टू, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पर कोई एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ पर मान लिया एरे ले लिया, उसको लेके बाद अपन चलते हैं, ठीक है। सो एक एरे ले लेता हूं मैं, लेट से एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4। मान लिया ये मेरा एरे है 1 2 3 4। अब हमें इसमें पेयर बनाने हैं। पेयर मतलब क्या होता है, जिसमें दो दो एलिमेंट्स हों और वो उनका जो सम है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर 1 लूं और 1 के साथ अगर मैं 2 लूं तो 1 और 2 का सम कितना होता है 3, जो कि क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। अगर मैं 1 और 3 लूं, अगर इन दोनों का मैं सम करूं तो वो क्या आएगा 4। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से डिविजिबल है। तो चलो ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब मैं लूं 1 4, क्या इसका जो सम बना वो बना 5, क्या वो 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे हमें पेयर्स बनाने हैं। बट यहां पर एक और कंडीशन है कि सपोज मेरा ये एरे होता 1 2 3 4, कॉमा यहां पर एक एलिमेंट और होता दैट इज 3, तो यहां पर 3 दो बार रिपीट हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 3 और 1 3 दो बार हमारा ये सेम पेयर बन जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर 1 3 ऑलरेडी एक बार लिया जा चुका है सो वो पेयर दोबारा यहां पर नहीं लिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि दोबारा वो पेयर नहीं लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा हम इसको नहीं ले सकते। सो ये हमारा एक मेन पॉइंट था जो हमें इसमें लेना था, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, 1 3 नहीं लिया जा सकता, हाँ ये मेन पॉइंट है, ठीक है। सो नाउ वी विल गो अहेड विद दिस। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कैसे हमें क्या करना है। सो सपोज सबसे पहले हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं कि एक पूरा एरे है और इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एरे लेके बताया, ठीक है। सो वही एरे अपन ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 3। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, हम सम करते चले जाएंगे, हम पेयर्स बनाते चले जाएंगे। लाइक हमने 1 + 2 करके देखा, 1 + 3 करके देखा, 1 + 4 करके देखा, 1 + 3 करके देखा। जो भी 2 से डिविजिबल है उसको हम पेयर वाली कंडीशन में डालेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर हम एक चीज कर लेंगे, क्या ये पेयर पहले से सिचुएटेड है या नहीं सिचुएटेड है, ठीक है। बस हम ये चीज चेक कर लेंगे कि क्या ये पेयर पहले से है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस पेयर को हम डाल देंगे, है ना, इस पेयर को हम डाल देंगे। और अगर पहले से सिचुएशन है तो हम इस पेयर को कंसीडर नहीं करें। बस सिंपल सा काम है, यही हमको करना है। सो इसका हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोड इसका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट एक बस जो यूनिक वाली एलिमेंट है ना उसका रहेगा। अब जैसे सपोज ये है कि 1 2 3 2 6 5 4। सो इसमें जैसे अपन का पेयर क्या बन गए, 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 5 6 4। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो रिपीट नहीं हो रहा है, एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं। सारे जो पेयर्स हैं वो यहाँ पर हमें यूनिक दिख रहे हैं और सारे के सारे पेयर्स यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 है। सो ये हमें कोड लिखना है, तो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, काउंट पेयर में। तो मैंने काउंट पेयर वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू मैंने 0 रख दी, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। सिंपल सा लूप लगाना चालू करता हूं मैं अपने एरे में। सो मैं तो इस एरे की जो भी लेंथ है उस तक मैं लूप करूंगा। एरे की लेंथ है अभी यहाँ पर 7, क्योंकि हमने फिक्स ली हुई है। सो यहाँ पर अपन लूप लगाते हैं, ठीक है। एंड आगे डबल लूप लगाएंगे हम, और जो जे है वो i+1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम एक वैल्यू ये लेंगे और इसका सम करेंगे हम आगे की सारी वैल्यूज से, इसलिए हम डबल लूप चला रहे हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट को लेंगे, इसके आगे वालों से सबसे इसका सम करेंगे, फिर इस एलिमेंट को लेंगे, इसके आगे वालों से सबसे इसका सम करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपन एक आगे वाले एलिमेंट से यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अपन को क्या करना है, सम पेयर। सम पेयर में क्या आएगा, एरे आई प्लस एरे जे, दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनका हमने सम करके देख लिया। अब अपन को क्या चेक करना है कि ये जो सम है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अपन इसमें ये चेक करेंगे, इफ, यहां पे लगाता हूं मैं इफ कंडीशन, ठीक है। इफ सम पेयर इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0, मतलब इसका मॉड्यूलस कर दिया मैंने।
अगर इसका मॉड्यूलस 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें इसको हम अब ये चूज करेंगे कि इसको हमें डालना है या नहीं डालना है, क्योंकि इसका डिविजिबल तो 2 है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पेयर कहीं पहले से आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। और मैप हम कैसा क्रिएट करेंगे, पेयर का मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे पेयर में। और इसमें हमें ये चेक करना है आया है कि नहीं आया है, तो हम एक बूलियन वैल्यू ले लेंगे, बूल, विच इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स रहेगा इसमें अपन का। तो अपन ने एक मैप बना लिया पेयर और किसका, बूलियन वैल्यू का, जिससे अपन चेक कर पाएंगे कि क्या इसमें सिचुएटेड है या नहीं है। तो अब अपन चेक करेंगे कि मैप में, चलो सबसे पहले इसका एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। सो पेयर मैप के अंदर ही बना लेते हैं, है ना। सो अब हम ये चेक करेंगे क्या हमारे मैप में, ठीक है, मेक पेयर। देखो आपको ये सारे फंक्शंस पता होने चाहिए कि पेयर्स कैसे बनाते हैं, मैप्स कैसे बनाते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप पेयर्स कैसे बना सकते हो, मैप्स कैसे बना सकते हो, सेट्स कैसे बना सकते हो, वरना ये वाले क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेक पेयर, और पेयर किसका बनेगा हमारा, एरे आई कॉमा एरे जे, ठीक है। सो हम चेक कर रहे हैं कि अगर मैं इसका मैप बनाऊं, ठीक है, तो क्या ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू है, ठीक है, तो हम इसको डाल देंगे, हम इसका पेयर बना देंगे। इसका मतलब पहले से पेयर इसका बना नहीं हुआ, और इसको हम कर देंगे ट्रू, और काउंट पेयर की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, ठीक है। और अगर पहले से पेयर बना हुआ है तो हमें कुछ एक्शन करना ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रिंट के हमारे कितने पेयर बनने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आउटपुट में बताया 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स बनने चाहिए। सो एक बार प्रिंट करा के देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपको समझ में आया होगा, वरना मैं अभी आपको प्रिंट भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो काउंट एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काउंट पेयर, ठीक है, लेट्स सी कि कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने। कोड को रन करके देख लेते हैं एक बार, है ना। सो कुछ अजीब सा ही आंसर आ रहा है ये तो। अब ये आंसर कहाँ पे गलत हो रहा है। मैप किया हमने, काउंट पेयर की वैल्यू 0 है, मैप बनाया, ये किया, सम पेयर किया, सम पेयर डिविजिबल बाय 2, इफ मैप पेयर नॉट ट्रू देन मेक पेयर ट्रू एंड काउंट पेयर प्लस प्लस। सो मिस्टेक कुछ भी नहीं है, बस इसको हमने लूप के बाहर लिख दिया है, इसको लूप के सॉरी अंदर लिख दिया, इसको बाहर कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से 7 आ जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। सो रन कर दिया है कोड को, आंसर 7 आ चुका है, ठीक है। एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं पेयर्स को, उसके बाद मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब प्रिंट कैसे कराएंगे, एक पॉइंटर ले लेते हैं मैप के लिए, ठीक है। और आपको मैप्स के फंक्शन आने चाहिए तभी आप कर पाओगे, और पेयर्स के भी फंक्शन आने चाहिए। तो अपन मैप का फर्स्ट क्या है, पेयर, और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। मतलब पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें प्रिंट कराना है, फिर सेकंड एलिमेंट कराना है। मैप के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट प्रिंट कराना है, साथ साथ में देन हमें मैप के फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है। इससे हमारा पेयर प्रिंट हो जाएगा। और पॉइंटर तो है ही, तो यहाँ पे हमें सॉरी पॉइंटर करना पड़ेगा, पॉइंटर, पॉइंटर का फर्स्ट और पॉइंटर, तो पॉइंटर से लूप कराया है ना हमने मैप को। सो रन करके देखते हैं एक बार, मेरे हिसाब से आउटपुट आ जाना चाहिए इसका सही। पॉइंटर का फर्स्ट, पॉइंटर का सेकंड हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। लेट्स सी। सो आप देख सकते हो पेयर हमारे बिल्कुल सही प्रिंट होकर आए हैं, 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 5 6 4। ये हमने कैसे कराया, तो सिंपल है, ये एरे था, एरे पे 2 लूप लगाए हमने, 2 लूप लगा के चेक किया क्या किन्हीं भी 2 एलिमेंट का जो सम आ रहा है क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो हमने उसका पेयर बनाया, पेयर बना के हमने मैप में रख दिया। मैप में इसलिए रख दिया क्योंकि अगर सेम पेयर दोबारा आएगा तो हमें उसे नहीं लेना है, और हमने अपना काउंट पेयर को प्लस प्लस कर दिया, सिंपल सी बात है। तो अगर सेम पेयर कोई दोबारा आएगा तो मैप उसको कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि वो इसकी जो वैल्यू है वो यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉट ट्रू यहां पर फॉल्स हो जाएगी, है ना। और उसके बाद हमने लास्ट में जाके पेयर्स को प्रिंट कर दिया, बस यही काम था और कोई काम नहीं था। ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, और
आपको बताता हूँ, ये टीसीएस एनक्यूटी के 2021 एडिशन में पूछा गया था, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, टीसीएस एनक्यूटी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो मैं बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन का नाम है पेयर डिविजिबल बाय 2। अब ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट शायद आपको नहीं लगेगा सुनने में, बट यहां पर एक जो चीज है जो इसको लिटिल डिफिकल्ट बनाती है वो ये है कि पेयर शुड बी यूनिक। सो इस क्वेश्चन को अपन बोल सकते हैं यूनिक पेयर डिविजिबल बाय 2, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सो सपोज मैं यहां पर कोई एक एरे ले लेता हूं, ठीक है। मैंने कोई भी यहां पर मान लिया एरे ले लिया, उसको लेके बाद अपन चलते हैं, ठीक है। सो एक एरे ले लेता हूं मैं, लेट्स से एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4। मान लिया ये मेरा एरे है 1 2 3 4। अब हमें इसमें पेयर बनाने हैं। पेयर मतलब क्या होता है, जिसमें दो दो एलिमेंट्स होंगे और वो उनका जो सम है वो दो से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर 1 लूं और 1 के साथ अगर मैं 2 लूं तो 1 और 2 का सम कितना होता है 3, जो कि क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। अगर मैं 1 और 3 लूं, अगर इन दोनों का मैं सम करूं तो वो क्या आएगा 4। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से डिविजिबल है। तो चलो ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब मैं लूं 1,4, क्या इसका जो सम बना वो बना 5, क्या वो 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे हमें पेयर्स बनाने हैं। बट यहां पर एक और कंडीशन है कि सपोज मेरा ये एरे होता 1 2 3 4, कॉमा यहां पर एक एलिमेंट और होता दैट इज 3, तो यहां पर 3 दो बार रिपीट हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1,3 और 1,3 दो बार हमारा ये सेम पेयर बन जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर 1,3 ऑलरेडी एक बार लिया जा चुका है सो वो पेयर दोबारा यहां पर नहीं लिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि दोबारा वो पेयर नहीं लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा हम इसको नहीं ले सकते। सो ये हमारा एक मेन पॉइंट था जो हमें इसमें लेना था, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, 1,3 नहीं लिया जा सकता, हाँ ये मेन पॉइंट है, ठीक है। सो नाउ वी विल गो अहेड विद दिस। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कैसे हमें क्या करना है। सो सपोज सबसे पहले हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं कि एक पूरा एरे है और इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एरे लेके बताया, ठीक है। सो वही एरे अपन ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 3। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, हम सम करते चले जाएंगे, हम पेयर्स बनाते चले जाएंगे। लाइक हमने 1 + 2 करके देखा, 1 + 3 करके देखा, 1 + 4 करके देखा, 1 + अगेन 3 करके देखा। जो भी 2 से डिविजिबल है उसको हम पेयर वाली कंडीशन में डालेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर हम एक चीज कर लेंगे, क्या ये पेयर पहले से सिचुएटेड है या नहीं सिचुएटेड है, ठीक है। बस हम ये चीज चेक कर लेंगे कि क्या ये पेयर पहले से है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस पेयर को हम डाल देंगे, है ना, इस पेयर को हम डाल देंगे। और अगर पहले से सिचुएशन है तो हम इस पेयर को कंसीडर नहीं करें। बस सिंपल सा काम है, यही हमको करना है। सो इसका हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोड इसका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट एक बस जो यूनिक वाली एलिमेंट है ना उसका रहेगा। अब जैसे सपोज ये है कि 1 2 3 2 6 5 4। सो इसमें जैसे अपन का पेयर क्या बन गए, 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 5 6 4। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो रिपीट नहीं हो रहा है, एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं। सारे जो पेयर्स हैं वो यहाँ पर हमें यूनिक दिख रहे हैं और सारे के सारे पेयर्स यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 है। सो ये हमें कोड लिखना है, तो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, काउंट पेयर में। तो मैंने काउंट पेयर वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू मैंने 0 रख दी, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। सिंपल सा लूप लगाना चालू करता हूं मैं अपने एरे में। सो मैं तो इस एरे की जो भी लेंथ है उस तक मैं लूप करूंगा। एरे की लेंथ है अभी यहाँ पर 7, क्योंकि हमने फिक्स ली हुई है। सो यहाँ पर अपन लूप लगाते हैं, ठीक है। एंड आगे डबल लूप लगाएंगे हम, और जो जे है वो i+1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम एक वैल्यू ये लेंगे और इसका सम करेंगे हम आगे की सारी वैल्यूज से, इसलिए हम डबल लूप चला रहे हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट को लेंगे, इसके आगे वालों से सबसे इसका सम करेंगे, फिर इस एलिमेंट को लेंगे, इसके आगे वालों से सबसे इसका सम करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपन एक आगे वाले एलिमेंट से यहां पर चल रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अपन को क्या करना है, सम पेयर में क्या आएगा, एरे आई प्लस एरे जे, दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनका हमने सम करके देख लिया।
अब अपन को क्या चेक करना है कि ये जो सम है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अपन इसमें ये चेक करेंगे, इफ, यहां पे लगाता हूं मैं इफ कंडीशन, ठीक है, इफ सम पेयर इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0, मतलब इसका मॉड्यूलस कर दिया मैंने। अगर इसका मॉड्यूलस 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें इसको हम अब ये चूज करेंगे कि इसको हमें डालना है या नहीं डालना है, क्योंकि इसका डिविजिबल तो 2 है। सो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पेयर कहीं पहले से आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। और मैप हम कैसा क्रिएट करेंगे, पेयर का मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे पेयर में। और इसमें हमें ये चेक करना है आया है कि नहीं आया है, तो हम एक बूलियन वैल्यू ले लेंगे, बूल, विच इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो ट्रू और फॉल्स रहेगा इसमें अपन का। तो अपन ने एक मैप बना लिया पेयर और किसका, बूलियन वैल्यू का, जिससे अपन चेक कर पाएंगे कि क्या इसमें सिचुएटेड है या नहीं है। तो अब अपन चेक करेंगे कि मैप में, चलो सबसे पहले इसका एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। सो पेयर मैप के अंदर ही बना लेते हैं, है ना। सो अब हम ये चेक करेंगे क्या हमारे मैप में, ठीक है, मेक पेयर, देखो आपको ये सारे फंक्शंस पता होने चाहिए कि पेयर्स कैसे बनाते हैं, मैप्स कैसे बनाते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप पेयर्स कैसे बना सकते हो, मैप्स कैसे बना सकते हो, सेट्स कैसे बना सकते हो, वरना ये वाले क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेक पेयर, और पेयर किसका बनेगा हमारा, एरे आई कॉमा एरे जे, ठीक है। सो हम चेक कर रहे हैं कि अगर मैं इसका मैप बनाऊं, ठीक है, तो क्या ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू ट्रू है, ठीक है, तो हम इसको डाल देंगे, हम इसका पेयर बना देंगे। इसका मतलब पहले से पेयर इसका बना नहीं हुआ, और इसको हम कर देंगे ट्रू, और काउंट पेयर की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस प्लस, ठीक है। और अगर पहले से पेयर बना हुआ है तो हमें कुछ एक्शन करना ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रिंट के हमारे कितने पेयर बनने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आउटपुट में बताया 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स बनने चाहिए। सो एक बार प्रिंट करा के देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपको समझ में आया होगा, वरना मैं अभी आपको प्रिंट भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो काउंट एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काउंट पेयर, ठीक है, लेट्स सी कि कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने। कोड को रन करके देख लेते हैं एक बार, है ना। सो कुछ अजीब सा ही आंसर आ रहा है ये तो। अब ये आंसर कहाँ पे गलत हो रहा है। मैप किया हमने, काउंट पेयर की वैल्यू 0 है, मैप बनाया, ये किया, सम पेयर किया, सम पेयर डिविजिबल बाय 2, इफ मैप पेयर नॉट ट्रू देन मेक पेयर ट्रू एंड काउंट पेयर प्लस प्लस। सो मिस्टेक कुछ भी नहीं है, बस इसको हमने लूप के बाहर लिख दिया है, इसको लूप के सॉरी अंदर लिख दिया, इसको बाहर कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से 7 आ जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। सो रन कर दिया है कोड को, आंसर 7 आ चुका है, ठीक है। एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं पेयर्स को, उसके बाद मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब प्रिंट कैसे कराएंगे, एक पॉइंटर ले लेते हैं मैप के लिए, ठीक है। और आपको मैप्स के फंक्शन आने चाहिए तभी आप कर पाओगे, और पेयर्स के भी फंक्शन आने चाहिए। तो अपन मैप का फर्स्ट क्या है, पेयर, और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। मतलब पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें प्रिंट कराना है, फिर सेकंड एलिमेंट कराना है। मैप के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट प्रिंट कराना है, साथ साथ में देन हमें मैप के फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है। इससे हमारा पेयर प्रिंट हो जाएगा। और पॉइंटर तो है ही, तो यहाँ पे हमें सॉरी पॉइंटर करना पड़ेगा, पॉइंटर, पॉइंटर का फर्स्ट और पॉइंटर, तो पॉइंटर से लूप कराया है ना हमने मैप को। सो रन करके देखते हैं एक बार, मेरे हिसाब से आउटपुट आ जाना चाहिए इसका सही। पॉइंटर का फर्स्ट, पॉइंटर का सेकंड हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। लेट्स सी। सो आप देख सकते हो पेयर हमारे बिल्कुल सही प्रिंट होकर आए हैं, 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 5 6 4। ये हमने कैसे कराया, तो सिंपल है, ये एरे था, एरे पे 2 लूप लगाए हमने, 2 लूप लगा के चेक किया क्या किन्हीं भी 2 एलिमेंट का जो सम आ रहा है क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो हमने उसका पेयर बनाया, पेयर बना के हमने मैप में रख दिया। मैप में इसलिए रख दिया क्योंकि अगर सेम पेयर दोबारा आएगा तो हमें उसे नहीं लेना है, और हमने अपना काउंट पेयर को प्लस प्लस कर दिया।
सिंपल सी बात है। तो अगर सेम पेयर कोई दोबारा आएगा तो मैप उसको कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि वो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉट ट्रू यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, है ना। और उसके बाद हमने लास्ट में जाके पेयर्स को प्रिंट कर दिया, बस यही काम था और कोई काम नहीं था। ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।